must be aware that causing miscarriage or abortion of a woman is punishable under the Indian Penal Code, but कुछ exceptions रहे हैं. With the recent changes in the medical termination of pregnancy bill, the new act that came in 2021, and further changes in the medical technology, which is why the amendment essentially took place. ऐसे कुछ changes रहे हैं, and इसके view में recently ही Supreme Court ने very recently the court has passed an order in this case relating to abortion of pregnancy by an unmarried woman, which is beyond 24 weeks. So इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे. I'm going to tell you about the landmark judgment that has been passed by the court in this particular case. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. Now here, let us understand the background. So basically this is a 25-year-old woman who has been seeking termination of her pregnancy. She has covered 24 weeks and her pregnancy arose out of a consensual relationship. ये एक live-in relationship में थी, जहाँ पे जिसके थ्रू ये इनको प्रेगनेंसी अब देखने में आई है. 24 वीक्स ऑलरेडी हो चुके हैं. द पर्सन शी वॉज लिविंग विद हैज़ डिनाइड टू एक्सेप्ट द चाइल्ड एंड देयरफॉर शी और मैरी हर. सो शी वॉज फोर्स्ड टू टेक दिस डिसीजन ऑफ टर्मिनेटिंग हर प्रेगनेंसी. नाउ she says her petition basically a petition firstly was filed, a writ petition was filed before the High Court of Delhi, जहाँ पर उन्होंने बोला कि ये जो medical termination of pregnancy rules है 2003, this is violative of Article 14, जो basically हमारे equality rights की बात करता है, that all the citizens should be treated equally. Now here it says that this particular rule, it excludes an unmarried woman from the issue of termination of pregnancy, and she says that it is violative of her Article 14. The petitioner also said that just in case, you know, this had she been a widow or a divorcee, then she would not even require the permission from the court to abort the child. And just because she is unmarried, it's violative of her rights that she is being denied termination, and also that the fact that she's an unmarried woman, which is why she has to take permission from the court. And also she referred to the amendment made to section 3(2)(b) of the new termination amendment act that came in 2021, जहाँ पे उन्होंने बोला कि ये जो amendment लाया गया है, this has been brought in the light of new medical advancement. इतनी medical advancements हो गई हैं कि now ऐसी चीज़ें एक स्टेज के बाद भी पॉसिबल हैं, विच शी बेसिकली हाईलाइटेड इन अ पिटिशन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉ. अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है हमारी कंट्री में. पहले क्या था, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट में अनमैरिड वुमन को टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन अलाउड नहीं था. हाउएवर there have been amendments to this act in 2021, जहाँ पर सेक्शन 3 के थ्रू इस लिमिट को, जो पहले 20 वीक्स थी, इसको एक्सटेंड कर दिया फ्रॉम 20 वीक्स टू 24 वीक्स. दैट मीन्स यू कैन गेट एन अबॉर्शन अप टिल 24 वीक्स फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ वुमेन, लाइक women who have been rape victims, या फिर चाइल्ड को खतरा है या वुमेन को खतरा है बिकॉज ऑफ दिस प्रेगनेंसी. ऐसी सिचुएशन में ये वल्नरेबल वुमेन की कैटेगरी है जिनको स्पेसिफिकली क्लासिफाई किया गया है, एंड दे कैन सीक टर्मिनेशन. Two or more medical practitioners are required to give their consent to such termination where they feel कि प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को रिस्क है, या फिर उसकी पर्सनल फिजिकल या मेंटल हेल्थ को बहुत ग्रेव इंजरी हो सकती है अगर ऐसा नहीं किया गया, और देयर इज अ सब्सटैंशियल रिस्क टू द चाइल्ड हु इज गोइंग टू बी बॉर्न. फर्दर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देते हुए रूल 3 में जो MTP रूल्स हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ये भी बोला गया दैट इफ a pregnancy occurs as a result of failure of device or methods used, ताकि जो फैमिली प्लानिंग के लिए मेथड्स यूज करे जाते हैं, अगर उन डिवाइसेस की वजह से कोई फेलियर आ जाता है, देन इन सच केसेस
इस प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट ना करने दिया जाए, इसका मतलब आप सामने वाले जो कपल है, जो लेडी है, उसकी मेंटल हेल्थ को बहुत इंजरी पहुंचा रहे हो, ऐसा माना जाएगा। एंड फर्दर जो नेम है, जो द पर्सन हु वांट्स टू गेट द प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड, द नेम इज नॉट अलाउड टू बी रिपीट। नाउ हाई कोर्ट ने उस टाइम पे क्या बोला? सो हाई कोर्ट सेड दैट एज पर रूल 3B ऑफ द एमटीपी रूल्स, ये कोर्ट जो है, बिकॉज हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स पावर्स अंडर आर्टिकल 226, जो पावर्स हैं टू गिव जस्टिस, रिट पिटिशन की जो पावर्स हैं, इन पावर्स के थ्रू, इन इस रूल के अकॉर्डिंग कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड द स्टैच्यूट। जो लॉ में लिखा है, कोर्ट उससे ज़्यादा कुछ नहीं ग्रांट कर सकता अपनी पावर के अंडर। एंड दे बेसिकली सेड कि ये जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के सर्कमस्टांसेस हैं, यहाँ पर ये सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं कि ये 24 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी ना हो। एंड यहाँ पर जो पिटिशनर है, उनकी ऑलरेडी 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है। सो शी अप्रोच्ड द हाई कोर्ट एट अबाउट 23 वीक्स, एंड the court eventually denied the relief to her, and it said कि special circumstances में आप नहीं fall करते हो। Unmarried woman whose pregnancy arises out of a consensual relationship, आप एक consensual relationship में हो, and which is why you are not meeting these circumstances where you can claim that exemption, which is why you're not covered under the rules, and your pregnancy has to cannot be terminated after a period of 20 weeks। 20 weeks के बाद आप नहीं terminate कर सकते हो। 20 weeks is the normal limit for a normal person। 20 to 24 weeks is the limit for special circumstances, and the high court said कि unmarried woman जो consensual relationship में है, वो इस कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। बट नाउ सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आ चुका है इस केस में, जहां पर कोर्ट ने बोला कि अनमैरिड वुमेन कैन बी अलाउड टू अबॉर्ट हर प्रेगनेंसी ऑफ 24 वीक्स अराइजिंग आउट ऑफ अ लिव इन रिलेशनशिप सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। बेसिकली कोर्ट ने ये बोला है कि एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ताकि ये उससे बोर्ड विल टेल वेदर द फीटस कैन बी अबॉर्टेड विदाउट द रिस्किंग द लाइफ ऑफ द वुमन। एंड सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हाई कोर्ट ने बहुत अनड्यू रिस्ट्रिक्टिव व्यू लिया है ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बिल्स, प्रेगनेंसी रूल्स। एंड फर्दर कोर्ट ने ये बोला, जो कंटेंशन पिटिशनर ने भी रेज करी थी, कि जो 21 का अमेंडमेंट आया है, वहाँ पर पहले जो टर्म यूज करी गई थी वो थी हस्बैंड, that woman or her husband who want to terminate। Here now the term that has been used is partner। So the court said कि इससे पता लगता है कि कोर्ट का ये लेजिस्लेचर का ये इंटेंट था कि एक्ट में अनमैरिड वुमन को भी कवर किया जाए, नॉट जस्ट डिवोर्सी और विडो। So this is a big observation that has been made by the Supreme Court in this case। Further कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट का जो इंटेंट था, it was not basically to confine this termination, these situations to मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स। अगर ऐसा होता तो फिर डिवोर्स या विडो वुमन को भी क्यों अलाउड होती प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना? ये भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में फॉल करती है, बिकॉज द अमेंडमेंट बेसिकली सेड कि 24 वीक्स उस केसेस में एक्सटेंड किया जाएगा जहाँ पे वल्नरेबल विक्टिम्स हैं। वहाँ पर एक कैटेगरी ये भी है दैट अ वुमन हुज मैरिटल सर्कमस्टांसेस स्टेटस हैज चेंज्ड ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी, यानी मान लीजिए वो विडो हो गई हैं या डिवोर्स हो गई हैं, देन शी कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। फर्दर अनवांटेड अगर प्रेगनेंसी आप अलाउ कर रहे हो टू समवन टू सफर, देन इट इज अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट एंड स्पिरिट ऑफ द लेजिस्लेशन। एम्स के डायरेक्टर को बोला गया है टू कॉन्स्टिट्यूट अ मेडिकल बोर्ड, जहाँ पर ये देखा जाएगा कि कैन दिस प्रेगनेंसी बी टर्मिनेटेड। एंड बेसिकली अगर बोर्ड ऐसा कहता है, देन द अबॉर्शन विल बी कैरिड आउट अनफॉर्चुनेटली। नाउ इस केस में कोर्ट ने जो हम ASG हैं ऐश्वर्या भाटी मैम, उनको भी बोला है टू लुक इनटू द लेजिस्लेटिव इंटरप्रिटेशन, एंड शील बी फर्दर, यूनियन को भी डायरेक्शंस दी गई हैं इस रिगार्ड में। एंड now this is presently the interim order considering the urgency of the situation। ये interim order आ चुका है, अब देखना है कि एम्स के डायरेक्टर का क्या व्यू रहता है।
बाय द टाइम दैट आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऐसा अभी तक ये ही न्यूज़ है, एंड विच इज़ what I have brought across. I hope this was of use. अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, then this is an important judgment for you guys. Also, if you want to be updated with such legal current affairs, with such content, keep following us here, subscribe to our channel and also follow us on Instagram जहाँ पर हम daily आपके लिए legal updates लेके आते हैं.